Good morning everyone. As you know, story writing was included in CBSE 10th standard. Now story writing has been replaced by paragraph in this academic year 2021. Today we will discuss analytical paragraph, which is the latest topic that has been added in this syllabus. Let's get started. Which type of paragraph will be asked in exam? Writing an analytical paragraph of the given map, chart, report, line graph. It will be of 5 marks and the word limit will be of 100 to 120 words. What is analytical paragraph? Analytical paragraph is a written text based on the analysis of a subject. This form of writing is used to interpret the facts presented in the form of table, graph or chart. A graph or chart is a visual stimulus to depict the data. Data interpretation requires an analysis and comparison of the given facts and drawing conclusion based on the given data. It means the diagram is given. In this type of paragraph, the diagram is given and you have to explain it. क्लियर कि आपको डायग्राम दिया जाएगा, कोई ग्राफ, कोई चार्ट, उस पर इंफॉर्मेशन गिवन होगी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन all the information. There are some points you have to remember to write a paragraph. First one, read the given information carefully and understand what your paragraph is all about. Second one, information that is given in a diagram is non-verbal and you have to make it verbal. Third one, it should always be written in a precise manner. Precise manner means कि आपको उसे short में लिखना है, brief में लिखना है. Next one, you have to use short and crisp sentences. Sentences भी कोशिश करना short sentence use करो. Next one, 3 main elements. It means you have to divide your answer in 3 main elements. First, introduction. Introduction में आपको क्या करना है? Given topics की information देनी है. Body, it means डिटेल में बताना इंफॉर्मेशन को. थर्ड, कंक्लूजन. इट मीन्स इन द लास्ट कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूड बाय सेइंग व्हाट द मेन चेंजेस आर. सो लेट्स सी हाउ वी राइट अ पैराग्राफ. लुक एट द एग्जाम्पल. द बार चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन स्टडिंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी. Summarize the information in the chart by selecting and reporting the main features. Make comparisons where relevant. It means bar chart आपको दिया गया है. You can see this image. And number of men and women studying engineering at Australian universities. जो y axis पर आपको number of students दिए गए हैं जो engineering college में study कर रहे हैं. And एक्स एक्सिस पर ईयर शो किए गए हैं 1992, 2002 एंड 2012. एंड ब्लू लाइन शो मैन एंड रेड लाइन शो वीमेन. क्लियर दिस चार्ट. अब देखो इसको राइट कैसे करना है. फर्स्टली स्टार्ट बाय सेइंग एग्जैक्ट व्हाट द चार्ट शोज. चार्ट क्या दिखा रहा है? द बार चार्ट इलिस्ट्रेट्स the number of men and women studying engineering at Australian universities between the year 1992 and 2012 at 10-year intervals. सबसे पहले बार चार्ट जो है वो क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है, क्या एग्जाम्पल कर रहा है. इलिस्ट्रेट करना इट मीन्स डिस्क्राइब करना कि मैन और वीमेन की नंबर बता रहा है स्टडी जो इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में. कब तक के? 1992 से 2012. क्लियर कि 10 ईयर के इंटरवल्स में. इट कैन बी सीन that the number of male students fell slightly from 14,000 in 1992 to 12,000 in 2002. It means it can be seen, it means you can see here कि number of male students कितने हैं? male students 40,000 हैं 1992 में और वो क्या हो जाते हैं fell slightly डिक्रीज हो गए हैं 14,000 से 12,000 पर आ गए हैं 2002 में. एंड देन रिमेन्ड लेवल थ्रू द फॉलोइंग डेकेड.
नेक्स्ट 2012 में, इट मीन्स नेक्स्ट डेकेड में 12,000 थे, तो 12,000 ही रहते हैं मेल स्टूडेंट्स. द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज relatively low. relatively मीन्स comparatively लो हैं, फीमेल स्टूडेंट लो हैं. 1992 में कितने हैं? 14,000 तो मेल स्टूडेंट्स हैं और 2,000 क्या हैं? फीमेल स्टूडेंट्स. ओनली 2,000 है. However, while the number of men decreased, the number of women increased. Female students grew steadily by 2,000 each decade. फीमेल स्टूडेंट ईच डेकेड में, हर 1992 में 2,000 फीमेल स्टूडेंट्स थे, 2002 में 4,000 हो गए और 2012 में 6,000 हो गए फीमेल स्टूडेंट्स. वो क्या है? 2,000 ईच डेकेड में इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं. मैन कॉन्टिन्यू टू मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. क्लियर हो रहा है कि डिस्क्राइब द चेंजेस. 10 चेंजेस को हम डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, डाटा बताते जा रहे हैं, नंबर बताते जा रहे हैं फ्रॉम द बार चार्ट से. इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं. कंपेयर द इंफॉर्मेशन, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स. मैन कंटिन्यू टू मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. मैन क्या बता रहे हैं? स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी. मेकअप इट मीन्स मैन ने कंटिन्यू स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी को बनाए रखा, कि चाहे इंक्रीज वीमेन हुई हैं, फीमेल स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, बट मेजॉरिटी अभी भी किसकी है? मेल स्टूडेंट्स की है, क्योंकि वो ज़्यादा हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इंक्रीज शार्पली इन दिस पीरियड. अब जैसे जैसे फीमेल स्टूडेंट्स बढ़ते गए तो उनका प्रोपोर्शन तो था वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. 1992 में देयर वॉज 1 वुमेन टू एवरी 7 मैन. एवरी 7 मैन पर 1 वुमेन थी 1992 में, क्योंकि मेल स्टूडेंट्स 14,000 थे और फीमेल स्टूडेंट 2,000 थे. अब ये बढ़कर 2012 तक कितना हो गया? दिस हैड नैरो टू 1 वुमेन टू एवरी 2 मैन, कि एवरी 2 मैन पर अब 1 वुमेन थी. जो प्रोपोर्शन था वो कम होता चला गया 2012 में. क्लियर दिस? ये हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी. अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं. ओवरऑल we can see a clear upward trend in the number of female engineering students in Australian universities. We can see a clear upward trend. Upward trend means change हम देख सकते हैं. The number of female engineering students Australian university में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. While the number of male students seems to have leveled off, कि उनका जो लेवल था वो कम होता जा रहा है और एक स्टेज पर आकर उनका लेवल इक्वल भी हो जाता है, बट फीमेल स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है. इस तरह से आप कंक्लूजन दे सकते हो. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू.